So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Do you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? हुमैरा, मैम Morphology. लेक्चर्स में हमने क्या-क्या पढ़ा है? Inflammation, good. उसमें हमने vascular events of inflammation and cellular events cover किए. Yesterday we covered the different morphological patterns of inflammation, and today I'm going to start mediators of inflammation. It's first presentation of 2, and tomorrow we'll inshallah complete it. So today I'll be talking about some very important mediators of inflammation. ये आगे कैसे होगी स्क्रीन आपकी? So, जब हमने inflammation पढ़ी है तो we came to know that it is a highly regulated process, and obviously some mediators are involved. So what are these mediators? Inflammatory mediators are the substances that initiate and regulate inflammatory reactions. ठीक है, ये उनकी definition है कि these are the substances that initiate and regulate inflammatory reactions. The most important mediators of acute inflammation are number 1 vasoactive amines. Vasoactive क्या समझ में आता है? हरीम, vasoactive, what do you understand by the term vasoactive? Harim, do you hear me? Ma'am, जो blood vessels पे act करते हैं. Very good, because they have important vascular functions and they include histamine and serotonin. Then the lipid products, including prostaglandins and leukotrienes, cytokines, including chemokines, and products of complement activation. ये most important mediators of acute inflammation है. And today I'll be covering vasoactive amines and lipid products. And cytokines and products of complement activation will be discussed tomorrow, inshallah. Now, there are a few general things that we need to keep in mind regarding inflammatory mediators, that either they are secreted by cells or generated from plasma proteins. Those that are secreted by cells are called obviously cell-derived inflammatory mediators, and those generated from plasma proteins are called plasma-derived inflammatory mediators. Cell-derived mediators are either sequestered in intracellular granules and can be rapidly secreted by granule exocytosis. For example, histamine in mast cell granules, and it is released on stimulation. Or they are synthesized de novo. For example, prostaglandins and leukotrienes, cytokines, in response to a stimulus. The major cell types involved in secretion of these mediators are the macrophages, dendritic cells, and mast cells. अब इन 3 cells के लिए हम एक क्लास बड़ा यूज करते रहे पहले 2 lectures में. कौन सा लफ्ज? Macrophages, dendritic cells, and mast cells. Sentinel cells. Very good. Sentinel cells. Very good. Other cells like platelets, neutrophils, endothelial cells, and epithelial cells are also involved in the secretion of inflammatory mediators. यहाँ तक बात clear? Yes, ma'am. मुदस्सर? Yes, ma'am. मुदस्सर क्यों नहीं बता रहा मुझे? So, to repeat, inflammatory mediators are the substances that initiate and regulate inflammatory reaction. The most important mediators of acute inflammation are vasoactive amines, lipid products, cytokines, and products of complement activation. Inflammatory mediators are either secreted by cells or are generated from plasma proteins. Cell-derived mediators are either sequestered in intracellular granules and can be rapidly secreted by granule exocytosis, or they are synthesized de novo, for example, prostaglandins and leukotrienes. Major cell types involved in secretion of these mediators are macrophages, dendritic cells, and mast cells, which are also called sentinel cells, while platelets, neutrophils, endothelial cells, and epithelial cells are also involved. Plasma-derived mediators are mostly produced in the liver and are present in circulation as inactive precursors that must be activated usually by a series of proteolytic cleavages to acquire their functional properties. यानी
इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव होने के लिए प्रोटियोलिटिक क्लीवेज चाहिए होती है, ठीक है। एक्टिव मीडिएटर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन रिस्पॉन्स टू ऑफेंडिंग स्टिमुलाई, फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम नेक्रोटिक टिश्यू. This thing is very important because it ensures that the release of mediators is achieved as and when required and where required. ठीक है ना, ये नहीं है कि सारी बॉडी में ही mediators निकले, सिर्फ वहीं पे और in response to offending stimuli. Most mediators are short-lived. They decay rapidly or they are inactivated or degraded by enzymes. One mediator can stimulate the release of other mediators. For example, the products of complement activation, they cause release of histamine, and tumor necrosis factor stimulates the endothelial cells to secrete interleukin-1. So these are some general things that we should keep in mind. Now coming to vasoactive amines. Most important is histamine, which is present in the granules of mast cells. This is a mast cell. And as you can see, these are the receptors for IgE antibodies. These are IgE antibodies, and these are the antigens. And when antigens bind to antibody, the signals are delivered to the cytoplasm to cause exocytosis of the granules. और ये exocytosis हो रही है, degranulation हो रही है, ठीक है? Mast cell degranulation occurs in response to physical injury such as trauma, cold, or heat, or binding of antigen to IgE antibody displayed on the surface of mast cell, जो कि हमने इस picture में दिखा रहे हैं. Or products of complement called anaphylatoxins. These are C3A and C5A. Complement system को कल हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे. The functions of histamine are to dilate the arterioles and to increase the permeability of venules by inducing endothelial contraction. So, इसको सारे को repeat करते हैं. Among vasoactive amines, histamine is the most important, and it is a component of the mast cell granules, and degranulation occurs in response to physical injury such as trauma, cold, and heat, or binding of antigen to IgE antibodies displayed on the surfaces of mast cells, or products of complement called anaphylatoxins C3A and C5A. Anaphylaxis अभी आप लोगों ने पढ़ लिया? What is anaphylaxis? Minahil, any idea? अभी जब आप लोग डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे जनरल पैथोलॉजी में, तो उसमें आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस वो पढ़ेंगे, उसमें आप एनाफाइलैक्सिस पढ़ेंगे. और कल जब हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तो हम एनाफाइलैटॉक्सिन्स का जिक्र जरूर होगा वहाँ पे, C3A and C5A. So the functions of histamine are arterial dilatation and increased vascular permeability caused by endothelial contraction. अच्छा, जब हमने सेलुलर इवेंट्स की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि वास्कुलर परमेबिलिटी किस किस वजह से इंक्रीज होती है. एक तो हो गई एंडोथेलियल कंट्रैक्शन, और दूसरी क्या थी? मिनाहिल, मुदस्सिर, डू यू हियर मी? मिनाहिल, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से भी हो सकती है. good, very good. Serotonin or 5-hydroxytryptamine is also a preformed vasoactive mediator present in platelets and certain neuroendocrine cells, such as in the gastrointestinal tract. And it acts as a neurotransmitter in the gastrointestinal tract and the central nervous system. So it causes vasoconstriction. And the role in inflammation is not very clear, but it is said that it stimulates the endothelial cells for adhesion of leukocytes, and leukocyte plays its role in leukocyte recruitment. So this is something about serotonin. So vasoactive amines में histamine है, serotonin है. Histamine is present in mast cell granules. Serotonin is also a preformed vasoactive amine, which is present in platelets and certain neuroendocrine cells, and it acts as a neurotransmitter in GIT and central nervous system, and it stimulates it causes vasoconstriction and leukocyte adhesion to endothelial cells. So, coming to a very important topic, arachidonic acid metabolites. The lipid mediators, prostaglandins and leukotrienes, are produced from arachidonic acid, which is present in membrane phospholipids. And these mediators stimulate vascular and cellular reactions in acute inflammation. ठीक है जी,
जो prostaglandins and leukotrienes हैं, these are derived from arachidonic acid, which is present in the membrane phospholipids, and they stimulate, they cause vascular and cellular reactions in acute inflammation. Mechanical, chemical, and physical stimuli or other mediators, for example, C5a, release arachidonic acid from membrane phospholipids through the action of cellular phospholipases, mainly phospholipase A2. ठीक है जी. Causes क्या है? Mechanical, chemical, and physical stimuli or other mediators like C5a. They stimulate phospholipases, mainly phospholipase A2, which causes release of arachidonic acid from membrane phospholipids. Arachidonic acid derived mediators are also known as icosanoids. क्यों इनको कहते हैं icosanoids? क्योंकि आपकी बुक में भी एक टेबल बना हुआ है, उसमें icosanoid का लफ्ज है, तो उसका मतलब है कि prostaglandins and leukotrienes. Actually, arachidonic acid is a 20 carbon polyunsaturated fatty acid, and icosa is a Greek word which means 20. So as prostaglandins and leukotrienes are derived from 20 carbon fatty acid, they are known as icosanoids. So they are synthesized by two major classes of enzymes: cyclooxygenases, which generate prostaglandins, and lipoxygenases, which produce leukotrienes and lipoxygen. यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अभी हमने जब आगे जाना तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी चाहिए. यस मैम. मैम जी, मास्ट सेल्स जो होते हैं नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में, टिश्यूज में? क्या चीज? मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स टिश्यूज में है ना. और जब इंजरी होती है तो फिर ये टीयर अप होते हैं कि स्टिमुलेट होते हैं, किस तरह इनका होता है स्टिमुलेशन फिजिकल इंजरी पे? located around the vessels. These are located around the vessels. तो जब इंजरी होगी तो फिर ये रिलीज करेंगे और फिर वो उस जगह पे अच्छा हाँ, ये सेल्स के उसके वेसल्स के अराउंड होते हैं, और जब इंजरी होती है तो वेसल डैमेज तो होगा ना. जी. ठीक है, तो फिर और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी है, तो अच्छा चलो यू करें कि गूगल करें. ठीक है, कैन यू गूगल? कौन बताएगा? Yes. मारवा, आप देखो लोकेशन ऑफ मास्ट सेल्स. ठीक है, और ये भी हमें बताओ. हम आगे मैम चलें. ये लिखा हुआ है कि कनेक्टेड टिश्यू एडजेसेंट टू द ब्लड वेसल्स. हाँ, तो वहां पे है ये. ठीक है ना. थैंक यू फातिमा. अच्छा, अरेकिडोनिक एसिड कहाँ पे है जी? मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में. रिलीज हुआ है थ्रू द एक्शन ऑफ सेलुलर फॉस्फोलाइपेजेस, मेनली फॉस्फोलाइपेज A2. आइकोसानॉइड्स हैं जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स. और icosanoids are synthesized by two major classes of enzymes: cyclooxygenases, which generate prostaglandins, and lipoxygenases, which produce leukotrienes and lipoxygens. Now, this is a figure which again I have taken from your book, and now we have to concentrate. We have to spend next 10 minutes on this figure. देखने में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने बात करी कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक्ट करेंगे फॉस्फोलाइपेजेस, and they'll synthesize arachidonic acid. Two major classes of enzymes, they act on arachidonic acid: cyclooxygenases and lipoxygenases. So first we concentrate on this left side of the pathway. Cyclooxygenases act on arachidonic acid to synthesize different types of prostaglandins. Prostaglandins are produced by mast cells, macrophages, and endothelial cells. They are generated by the action of two types of cyclooxygenases. Number one is COX-1 and number two is COX-2. COX-1 is constitutively expressed in most of the cells, and it synthesizes prostaglandins, which not only have a homeostatic function, but also they are involved in inflammatory reaction. ठीक है, तो अब जहाँ पे ये किस prostaglandins synthesize होती हैं, वो कुछ tissues में they have role in homeostasis. For example, they play their role in salt and electrolyte and fluid balance in the kidneys, and they act as gastroprotective prostaglandins in gastrointestinal tract for GIT mucosa. ठीक है,
उसके लिए prostaglandins यूज होती है, but they also increase in case of inflammatory reaction. I repeat, prostaglandins are synthesized by mast cells, macrophages, endothelial cells, and some other cells as well. They are synthesized by the action of two types of cyclooxygenases, COX-1 and COX-2. COX-1 is expressed in most of the tissues, most of the cells, and it is involved, and the COX-1 synthesizes and prostaglandins which are involved in homeostatic mechanisms. Homeostasis का मतलब क्या है? Homeostasis ये फिजियो में आप वर्ड पढ़ के आए. Maintenance of in the बॉडी के internal इंटरनल environment. टेम्परेचर. Very good. Internal जो उसकी एक equilibrium है between different physiological processes, वो that is called homeostasis. तो किडनी में इनका रोल है to maintain fluid and electrolyte balance. GIT में इनका रोल है prostaglandins का गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट. ठीक है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है prostaglandins का. ये COX-1 है, but COX-1 is also increased, or its expression is increased in case of inflammatory reactions. While COX-2 is present in, is expressed in only those cells which participate in inflammatory reactions. COX-1 बाकी सारे cells में है, उसका homeostasis में भी effect है, लेकिन वो increase हो जाता है in inflammatory reactions. While COX-2 typically inflammatory cells या वो cells which participate in inflammatory reaction उनके अंदर. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, क्योंकि इसको अभी हमने आगे बहुत डिस्कस करना है. अब आप ये देखिए कि different type of prostaglandins are synthesized. PGE2, PGG2, PGH2, PGI2, thromboxane A2, D2, and E2. So different types of prostaglandins are synthesized by different types of enzymes acting on intermediates in this path. Different, इसको बहुत simplified करके हमने यहाँ पे बनाया है, लेकिन different pathway में जो intermediates होंगे पूरे pathway में, उनके ऊपर different enzymes act करेंगे, तो ये different prostaglandins synthesized. And some of the prostaglandins have restrictive expression as well. यानी किसी खास tissue में वो present है. For example, platelets have an enzyme called thromboxane synthase, and this is responsible for the synthesis of thromboxane A2. Thromboxane A2 causes vasoconstriction and it promotes platelet aggregation. While endothelial cells do not have thromboxane synthase, rather they have prostacyclin synthase, which is called PGI2. So in them, PGI2 is synthesized, which causes vasodilation and it inhibits platelet aggregation. अब मुझे बताएं PGI2 और thromboxane A2 के functions पे क्या difference? मैम प्लेटलेट एग्रीगेशन का कौन करता है? A2 करता है. Thromboxane A2, पूरा thromboxane Yes. A2, ठीक है. हम कह रहे हैं कि कुछ जो different types of prostaglandins are synthesized by different enzymes and they have restricted tissue distribution as well. Platelets पे thromboxane synthase enzyme is present which synthesizes thromboxane A2, and thromboxane A2 causes vasoconstriction and promotes platelet aggregation. While in endothelial cells, no thromboxane synthase is present, rather prostacyclin synthase is present, so PGI2 is synthesized in them, which causes vasodilation and it inhibits platelet aggregation. If we look at both the effects, these are entirely opposite to each other, aren't they? Yes, ma'am. Bullet है ना? So in vessels, it is the balance between the prostacyclin and thromboxane A2 which maintains homeostasis. ठीक है, हो सकता है कि अगर thromboxane A2 ना बने तो prostacyclin की expression increase होगी ना relatively, वो inhibit करेगा platelet aggregation. A platelet will not be able to aggregate, they will not be able to attach to each other even if they are required. इसको मैं आपको explain करती हूँ. For example, कहीं local injury हुई है, ये जब हम इंशाल्लाह hemodynamic models पढ़ेंगे तो हम thrombosis को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज just उसको touch करती हूँ कि whenever there is vascular injury, तो वहां से जब एक्सट्रापोजिशन ऑफ ब्लड होती है तो वो साइट होती है जहां पे प्लेटलेट से एडहेयर करना होता है टू फॉर्म अ स्मॉल क्लॉट टू प्रिवेंट हैमरेज, राइट? सो इफ द बैलेंस बिटवीन PGI2 and thromboxane A2 is not there, PGI2 is relatively excessive, it inhibits platelet aggregation and platelets will not be able to aggregate, there will be continuous bleeding from that. On the other hand, if thromboxane A2 is in excess in platelets, it will promote platelet aggregation and there will be prothrombotic state. Is it clear?
Am I clear? Yes, ma'am. Now, down the line, PGD2 and PGE2 are there, which cause vasodilation, increase vascular permeability, and leukocyte chemotaxis. Particularly, PGD2 is a powerful chemotactic agent. So this was about the cyclooxygenase pathway, which leads to prostaglandin synthesis. Two types of cyclooxygenases are present, COX-1 and COX-2. And different prostaglandins are produced, which have different actions by different enzymes acting on the intermediates in the pathway. Coming on to lipoxygenases, again, lipoxygenase acts on lipoxygenases rather act on arachidonic acid, and they produce different types of leukotrienes. उनकी आप उनकी देखें कि उनके नंबरिंग की भी है, leukotriene A4, leukotriene C4, D4, and E4. They cause bronchospasm and increase vascular permeability. Increased vascular permeability and bronchospasm is caused by leukotriene C4, D4, and E4, while leukotriene B4 is a powerful chemotactic agent. Chemotaxis क्या थी? Locomotion of neutrophils or phagocytes along a chemical gradient. That was chemotaxis. So lipoxygenases act on arachidonic acid and synthesize different types of leukotrienes which have different functions, but C4, D4, E4, they cause bronchospasm and increase vascular permeability. Lipoxygenases, different lipoxygenases, they act on the arachidonic acid and they synthesize lipoxins. Lipoxins have exactly the opposite role as that of leukotrienes. They inhibit neutrophil adhesion and chemotaxis. Leukotriene B4 causes chemotaxis, while lipoxins, they inhibit neutrophil adhesion and chemotaxis. So they have different role than that of the leukotriene B4. Clear? Shall we move on? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. This table, again from your book, principal actions of arachidonic acid metabolites in inflammation. और आप ये देखो ऊपर वो कह रहे arachidonic acid metabolite, नीचे वो कह रहे icosanoid. ठीक है, ये आपने इसको अच्छी तरह याद करना है because this is an acid, right? अब एक बात हमें समझने की वो ये कि हम इतनी डिटेल में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को क्यों पढ़े. एनी गेस इतनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं फातिमा, एनी गेस क्या इंपॉर्टेंस है? मरवा, मुदस्सिर ने बंद कर दिया अपना. मिनाहिल, एनी आइडिया? मिनाहिल, do you hear me? इंफॉर्मेशन Ma'am. तो Yes, ma'am. हाँ, क्या? मैम इन्होंने रिक्रूटमेंट करवानी होती है ल्यूकोसाइट्स का. अच्छा, यहाँ इसका रिलेशनशिप जो है ना उस चीज से जो हमने पहले दिन डिस्कस की थी. हमने कहा था कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी, यही कहा था ना हमने. बट समटाइम्स Yes, ma'am. इट गेट्स प्रॉब्लमैटिक एज वेल. यही बात की थी ना कि ऑल द टाइम इट इज नॉट प्रोटेक्टिव. कभी कभी ये खुद प्रॉब्लम, खुद जिसको कहते हैं कि जड़ बन जाता है फसाद की. ठीक है, वो कब है? नंबर वन, व्हेन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इज इंसाइटेड अगेंस्ट self anti, or if it occurs against harmless environmental substances. ठीक है, जैसे different allergies हो रही है, asthma है, ठीक है, तो वहां पे sometimes हमें एक heightened सा inappropriate सा inflammatory response मिल जाए. That is not required actually. So ये जो हमने इतनी डिटेल में पढ़ा है साथ, इसमें अगर आप ये वर्ड से देखें तो जो रेड में दिया हुआ है ये हमने वो एजेंट्स है जो इनहिबिट कर रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दिस पाथवे, ताकि हम इन्फ्लेमेशन को, इनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं. और आप अगर कभी किसी फार्मेसी में जाके देखें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की पता हंड्रेड्स ऑफ देम आर प्रेजेंट. सो अब हम इस चीज को देखेंगे कि जब हमें ये पता चलता है कि इनअप्रोप्रिएट और हाइटेंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते हैं. डोंट वी, हम लेते हैं ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें फेरिंजाइटिस हुआ, हमें टॉन्सिलाइटिस हुआ, उसकी वजह से हमें फीवर और बॉडी एक्स हो रहे हैं. ठीक है, हमें पता है कि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहे हैं, हम एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं या नहीं लेते?
यस मैम। लेते हैं ना, Yes, इसीलिए ma'am. लेते हैं क्योंकि फीवर एंड बॉडी दे आर एक्चुअली कॉज्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करने के लिए जो पेन और जो फीवर हो रहा होता है ना, उसको कम करने के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर लेते हैं। ठीक है ना, कि जो पेन हो रहा है वो कम से कम रिड्यूस हो जाए, जो फीवर इतना ज्यादा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं। हमेशा ये होता है जब कभी इन्फेक्शन होगा, आप ये देखिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है और साथ में जरूर पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी जरूर दी जाती है। तो उनके एक्शंस जो है डिफरेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्टीरॉइड्स इनहिबिट करते हैं मैम। जी बेटे फातिमा। मैम ये आपने जो बताया कि यस मैम एंटी इन्फ्लामेटरी हम देते हैं इनको, तो मैम एक्यूट इन्फ्लामेशन तो एक तरह की वो है ना कि अभी तो वो क्रॉनिक में नहीं बदली, तो एक्यूट तो ये है कि हमारी जो अपनी बॉडी मैकेनिज्म है वो फाइट बैक कर रहा है, बिल्कुल तो सही। एक तरह से ये मतलब नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो हम ये एंटी बात मैं करी। इन्फ्लामेटरी। थैंक यू फातिमा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिनेंट है और यही बात हम कह रहे हैं कि नॉर्मली इट इज प्रोटेक्टिव फॉर द होस्ट, बट समटाइम्स इट बिकम्स एग्जैजुरेटेड। जैसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होता है, इज एग्जैजुरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मैं आपको ना क्लिनिकल एग्जांपल्स देनी शुरू करती हूँ, उससे आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल, किसी को एलर्जी है मीट प्रोटीन से, उसने बाहर जाके मतलब उसे डाइन आउट किया और उसको नहीं पता चला, उसने गोश्त का कुछ उसने खा लिया, इमीडिएटली उसको रिएक्शन हो, लिप स्वेलिंग हो गई, फेशियल स्वेलिंग हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, बिकॉज़ ये सारे ये वेसोस्पैज्म ब्रोंकोस्पैज्म का रहे होते हैं। ठीक है ना, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। फिर ये डर होता है कि कहीं उसके एपिग्लॉटिस पे स्वेलिंग ना हो जाए और उसकी डेथ। इतना सवेयर रिएक्शन होता है। वी डू नॉट वांट दैट इन्फ्लेमेशन, डू वी? हम ऐसे नहीं चाहेंगे ना। तो आप ये देखिए कि जब ऐसी कंडीशन होती है, इमीडिएट हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है, क्या देते हैं उसको? स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ओके है ना? ओके मैम, जैसे थैंक मैंने एग्जांपल यस दी मैम। कि जैसे हमें फेरिंजाइटिस हुआ हुआ है या टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ है, तो उससे जो फीवर और पेन हो रहा होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन से हो रहा होता है। तो फिर हम ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी लेते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करे, जो साइक्लोक्सिनेजेस को इनहिबिट करे और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ना बने। ठीक है ना, तो हम उस इन्फ्लेमेशन को Yes, ma'am. अनकंट्रोल्ड कभी भी नहीं जाने देते, हमें वो देनी पड़ती है एंटी इन्फ्लेमेटरी टू लिमिट दैट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अच्छा, ठीक है मैम, अब यहाँ पे देखो ऊपर हमने स्टीरॉइड्स का देखा, स्टीरॉइड्स तो फॉस्फोलाइपेजेस को बंद कर देते, तो इनका बहुत वाइड स्प्रेड रोल है। ठीक है, साइक्लोक्सिन को इनहिबिट करने के लिए कौन कौन से साइक्लोक्सिनेजेस थे? COX-1 एंड COX-2, इनके इनहिबिटर्स है एस्पिरिन एंड इंडोमेथासिन। अब हम इसको आगे जाके देखते हैं। अच्छा, साइक्लोक्सिजिनेज इनहिबिटर, इस स्लाइड पे भी हम अब थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। आई होप आई हैव टाइम, यस आई हैव। So, cyclooxygenase inhibitors include aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs. अभी मैंने आपके फार्मा के हेड से पता किया था, अभी आप लोगों ने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन नहीं पढ़ी, तो कोई बात नहीं। अभी तो आप लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शायद शुरू किया है, लेकिन आप लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो आप एक पूरी क्लास ऑफ ड्रग्स है और आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लगा। साइक्लोक्सिनेज इनहिबिटर्स में एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शामिल। They inactivate both COX-1 and COX-2 and thus inhibit prostaglandin synthesis, hence their efficacy in treating pain and fever. ठीक है जी, जो हमने अभी बात की कि पेन और फीवर को कम करने के लिए हम एस्पिरिन या एनसेड जैसे आइबुप्रोफेन है और नेप्रोक्सिन और इस किस्म की चीजें वो हम ले रहे होते हैं। ठीक है, एस्पिरिन does this by irreversibly acetylating and inactivating cycloxyl। ये जो एस्पिरिन का इफेक्ट है वो irreversible, ठीक है। Selective COX-2 inhibitors are 200 to 300 fold more potent in blocking COX-2 than COX-1। ठीक है, selective COX-2 inhibitors are 200 to 300 fold more potent in blocking COX-2 than COX-1, which should be used। ये मेरा सवाल है। हमने साइक्लोक्सिनेज इनहिबिटर्स लिए, उनमें एस्पिरिन भी हो सकती है, उसमें नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी हो सकती है। वो COX-1 और COX-2 को इनहिबिट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। Selective COX-2 inhibitors are much more potent than COX-1 inhibitors। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? अब हम दोबारा से जाते हैं कि COX-1 कहाँ पे था और COX-2 कहाँ पे था। यस मैम। हाँ जी, कहाँ था COX-1, कहाँ पे था?
मैम COX-1 COX-2 देंगे मोस्टली तमाम सेल्स में होता है, जो COX-2 मैम, है वो COX-1 सिर्फ तमाम इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो सेल्स इन्फ्लेमेशन में COX-1 जो है वो पार्टिसिपेट बाकी करते हैं। सेल्स में है, उसका रोल इन होमियोस्टेसिस है, वो रीनल में किडनी में जाके वो सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में उसका रोल है, और प्लस स्टमक में इनका रोल है एज गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसाइज करता है ना COX-1, वो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होती है। यानी आप सोचो इतना इतना एसिड जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट हो रहा होता है, तो उससे स्टमक को महफूज रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। सो COX-2 और लेकिन ये COX-1 इंक्रीज हो जाते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एज वेल। जो COX-2 है, it is expressed in only those cells which participate in inflammatory reaction. और जबकि selective COX-2 inhibitors are much more potent than COX-1 inhibitors, हम कौन सी यूज करें? COX-2 मैम COX-2 inhibitors. लेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक है इन्फ्लेमेशन Inflammation का, ठीक है। और any other guess? मरवा क्या कहेगी? COX-2 inhibitors यूज करेंगे। हाँ, लग तो यही रहा है कि हमें selective COX-2 inhibitors यूज करने चाहिए, बट जो डिफरेंट स्टडीज हुई है ना, उन्होंने ये देखा कि जो COX-2 है ना, अगर हम सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स को यूज करें तो उनका रोल इतना नहीं इसका चीज इतनी सिंपल नहीं है कि हम सिर्फ COX-2 इनहिबिटर यूज कर लेंगे तो हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट अचीव हो गया। कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन रहेगी, बिकॉज COX-1 की भी एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। दूसरी बात, ये जो COX-2 है ना, वो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज को इनहिबिट, वो प्रोस्टाग्लैंडिन से थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज को इनहिबिट नहीं करती, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसाइज होता जाता है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट हो जाती है। तो बैलेंस कहाँ को टिल्ट हुआ? टुवर्ड्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर आप सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स यूज करेंगे तो ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। तो जो वो है, वो COX-2 तो इनहिबिट हो गया, ठीक है, PGI2 इनहिबिट हो गया, लेकिन COX-1 भी तो कर रहा है ना इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 इज नॉट अफेक्टेड। ये मेरा कर्सर पता नहीं कहाँ चला। प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन is inhibited, but thromboxane A2 is not inhibited. So the balance between PGI2 and thromboxane A2 tilts towards 8 thromboxane A2, and this increases the risk of thrombosis. ये बात क्लियर हुई है या नहीं? मैम इसको रिपीट कर यस दें। मैम मैम एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, इसमें ये बात है कि although COX-2 inhibitors are much more potent than COX-1 inhibitors, हम रिकमेंड नहीं करते कि सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स को यूज करें, बिकॉज जो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जब हम यूज करते हैं तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन इज रिड्यूस्ड व्हाइल थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड। सो द बैलेंस जो है ना, वो टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स थ्रोम्बोक्सिन A2, और वो क्या कराती है? प्लेटलेट, इट प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हम सेलेक्टिव, तो इसका यूज जो है ना, अब हमें नहीं पता कि हमारा पेशेंट जो उसके अंदर कोई और इनहेरिटेड ऐसी प्रॉब्लम मौजूद है कि वो पहले ही उसकी प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसको काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन इन योर बुक, और मैं बहरहाल आपको समझा रही हूँ, बट इफ कोई आपको कंफ्यूजन होती है तो आप बिग रॉबिन्स में से इसको देख सकते। एक बात तो हमारी ये हो गई। फातिमा, मरवा, मिनाहिल, इज इट यस मैम। कोई एम्बिगुइटी Yes, तो ma'am. नहीं है? यस। नो अब एक और चीज मैंने आपको समझानी है कि जो हम कह रहे हैं ना कि हम क्यों इतने सेलेक्टिव हो रहे हैं कि हम सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स को यूज करें, हम COX-1 इनहिबिटर्स को यूज ना करें। हाँ, क्योंकि अभी आप लोग माशाल्लाह थर्ड ईयर में आए हैं, इन नो टाइम यू विल बी डॉक्टर्स इंशाल्लाह, और उस वक्त आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स आर द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अच्छा, हमें ये डर लगता है कि अगर हमने बहुत प्रोलॉन्ग यूज किया एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का, particularly NSAIDs and aspirin, तो they are bad for our gastrointestinal tract. This is known that aspirin causes gastric erosion, ठीक है, बिकॉज हमने कहा कि COX-1 जो है उसका गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव रोल है। COX-1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करवाती है, उनका गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है। सब जब वो इनहिबिट हो गया तो हमारा गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट चला गया। तो एस्पिरिन और एंड ऑल अदर एंसिड्स दे कॉज गैस्ट्रिक इरोजन एंड इवन गैस्ट्रिक अल्सर। अब मैं एक पेशेंट की का केस आपको जरूर मैं शेयर करूंगी, बिकॉज
जब हम चीजों को रिलेट करते हैं विद द पेशेंट्स तो हमें वो कभी भी नहीं भूलते, एटलीस्ट मेरे साथ भी होता है। अगर मैं सिर्फ किताब से पढ़ के समझ रही हूँ, मैं रट्टा मार रही हूँ, तो मैं भूल सकती हूँ, लेकिन अगर हम उसको रिलेट करेंगे विद आवर पेशेंट और प्रेजेंटेशन तो हमें वो कभी भी नहीं भूलेगा। एक पेशेंट था 2 साल पहले, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ही वाज 54-55 इयर्स ओल्ड मेल। उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और उनकी फीमर फ्रैक्चर हो गई। ऑब्वियसली उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे एंड देन ही वाज डिस्चार्ज, और जो उनको एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दी थी टू रिड्यूस पेन, ठीक है, एंड ही टुक दोस एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन फॉर क्वाइट अ व्हाइल, तो 15 दिन वो रेगुलरली लेते रहे। और उसके बाद he presented in emergency with severe hematemesis. Hematemesis क्या होती है? Vomiting of blood. उनको इतनी severe hematemesis थी कि वो hemodynamically unstable हो गए, उनको फौरन उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और मुझे अब तक याद है 2 दिन के अंदर 17 ब्लड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, फ्रेश ब्लड भी जा रहा था, पैक्सेस भी जा रहे थे, प्लेटलेट्स भी जा रहे थे और प्लाज्मा भी गया। 17 bags, 17 pints of different blood products unko transfused. He survived the initial accident but could not survive this thing, usko bleeding हुई। a massive transfusion की तो complications इतनी है and he passed away, ठीक है ना। so ये चीजें आप ध्यान में रखें। बहुत से ऐसे केसेस आप कभी गूगल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि NSAID induced gastropathy is an entity, ठीक है ना। और ये तो एस्पिरिन का तो मशहूर, आप लोगों ने भी अगर बहुत दिन खाली हो एस्पिरिन किसी वजह से तो आप देखेंगे कि आपको गैस्ट्राइटिस, आपको एक जलन सी फील होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से कि इट इज बैड फॉर द स्टमक। हाँ, ये COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रही है और वो COX-1 का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है ऑन आवर स्टमक दैट इज लॉस्ट। ये आपको याद रहेगी बात हमेशा। मैम इसको साइटोकाइन स्ट्राइक कहते हैं, साइटोकाइन स्ट्राइक कहते हैं इस चीज को। वो हम अगर कल इस तरह की पढ़ेंगे ना, वो हम कल पढ़ेंगे। वो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है ना, जो कोविड के पेशेंट्स में हो रहा है, वो इंशाल्लाह हम कल जी मैम। पढ़ेंगे। आज तो ये इतनी कॉमन चीज है ना, मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही कि दिस इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। तो क्योंकि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एस्पिरिन, अब देखो जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है दे हैव टू टेक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, तो उनको आर्थराइटिस है तो उनमें आप देखिए उनकी स्टमक का बुरा हाल हो, या उनको कोई ना कोई गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव हम उनको दवाई कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन इज बैड फॉर द स्टमक, ठीक है, बिकॉज वो COX-1 को इनहिबिट करते हैं और COX-1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज करते हैं दैट आर दे हैव प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन आवर म्यूकोसा, गट म्यूकोसा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है, एस्पिरिन डज दिस बाय इरिवर्सिबली एसिटाइलेटिंग एंड इनएक्टिवेटिंग साइक्लोक्सिन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इरिवर्सिबल। द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल। आप लोगों ने अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में कोई कार्डिक पेशेंट है या आपने किसी कार्डिक पेशेंट को हॉस्पिटल में देखा है, अब देखिए जिनको एक कार्डिक इवेंट हो चुका है उनको हम एस्पिरिन लो डोज एस्पिरिन मुस्तकिल दे रहे होते हैं। तो क्यों दे रहे होते हैं? हैव यू नोटिस्ड? लोप्रिन 75 मिलीग्राम एस्पिरिन होती है, वो हम दे रहे होते हैं। व्हाई डू वी डू दैट? फातिमा, मरवा, मिनाहिल दे रहे होते? हैव यू नोटिस्ड? डू यू नो? यस No, मैम, ma'am. यस मैम। हम क्यों दे रहे होते? मैम मेरा ख्याल है मैम मैंने तो एक लेमन लैंग्वेज में ही सुना हुआ है कि खून पतला। हाँ बिल्कुल सही। देखो जो लेमन लैंग्वेज होती है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम बैठे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने जाना है वार्ड्स में, आपने देखना है पेशेंट्स को, आपने बात करनी है पेशेंट से और उनके अटेंडेंट से, तो लेमन लैंग्वेज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपको लेमन लैंग्वेज का पता है, बस हमें अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज बहुत आती है, लेकिन जब हम कम्युनिकेट करते हैं विद आवर पेशेंट्स और देयर अटेंडेंट्स वी आर रियली पुअर। तो इसलिए मैं आपको एनकरेज करती हूँ आप लेमन लैंग्वेज में आप बताएं। अब अगेन हम इसको देखते हैं, हम दे रहे होते हैं एस्पिरिन टू रिड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन। साइक्लोक्सिन को इनहिबिट करेगी एस्पिरिन, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, और जो भी थ्रोम्बोसिस होती है ना वो स्टार्ट होती है बाय प्लेटलेट एडहेजन टू द वेसल वॉल एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। खून पतला किसकी हो रहा है कि उसमें प्लेटलेट्स की एग्रीगेट करने की या चिपकने की सलाहियत इज रिड्यूस्ड, इज लॉस्ट। समझ आई ये बात? हम कार्डियक पेशेंट्स यस मैम। आ गई ना समझ? हम कार्डियक पेशेंट्स में लोप्रिन लो डोज एस्पिरिन इसलिए दे रहे होते हैं to inhibit the synthesis of thromboxane A2 which is responsible for platelet aggregation, because we do not want platelet aggregation
इन आवर पेशेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, इससे भी आप रिलेटेड जो है ना एक कहानी सुन ले या एक बात आपको बताती कि आपने ये सुना होगा जब डेंगू का भी एपिडेमिक आया था कि प्लेटलेट्स लगवा लो, किसी को ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स लगवा लो, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करा लो। सुना है ये कभी आप लोगों ने? यस मैम। सुना हुआ है ना कि प्लेटलेट्स लगवा लें, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, वो ब्लीड कर रहा है, उसको प्लेटलेट्स लगने चाहिए। तो प्लेटलेट्स जब हम डोनेशन लेते हैं ना डोनर से प्लेटलेट्स की, तो हम उससे कैटेगोरिकली पूछ कि आपने पिछले 2-3 दिन में एस्पिरिन तो नहीं ली फॉर एनी रीजन। ठीक है, अगर वो कहे कि मैंने ली है तो हम उसको डेफर कर देते हैं, हम उसके डोनेशन को पोस्टपोन कर देते हैं, बिकॉज जो एस्पिरिन है इट इरिवर्सिबली इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर मैंने आज एस्पिरिन लिया तो जितने प्लेटलेट्स की लाइफ है जी 9 to 11 डेज, तो आज मैंने अगर एस्पिरिन खाई है या मेरा गला खराब था या मुझे जॉइंट पेन था व्हाटएवर, तो जितने भी प्लेटलेट्स इस वक्त मेरी बॉडी में होंगे ना उन सब का फंक्शन विल बी इरिवर्सिबली इम्पेयर्ड। उनका फंक्शन क्या था? डीएन एग्रीगेशन, उसकी एग्रीगेशन विल बी लॉस्ट। अगर मैं आज जाके अपना डोनेशन दे दूं प्लेटलेट्स का फॉर सम पेशेंट हु इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, उसको फायदा होगा? नो, बिकॉज मेरे प्लेटलेट्स का नंबर ठीक होगा लेकिन उनका फंक्शन खत्म हो गया। यू गॉट माय पॉइंट? यस यस मैम। मैम। समझ आ गई? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब हम प्लेटलेट्स का डोनेशन लेते हैं तो हम डोनर से स्पेसिफिकली पूछते हैं कि हैव यू टेकन एस्पिरिन इन द पास्ट 2-3 डेज। इफ ही सेज यस तो हम उसको डेफर कर देते हैं, हम उस वक्त उसका ब्लड नहीं लेते। हम कहते हैं ठीक है आप 3 दिन के बाद आइए, ये उनकी तो लाइफ ही 9 to 11 डेज है, इसमें डेली वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, डेली बंद भी रहे, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि पिछले 3 दिन में उसमें एस्पिरिन लिए तो उसके तो प्लेटलेट्स का फंक्शन ही इम्पेयर हुआ। हम वो इतना महंगा प्रोसीजर करके और उसके प्लेटलेट्स ले और हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज भी करते लेकिन उसको फायदा ना हो। सो दिस इज द रीजन कि हम प्लेटलेट डोनेशन के लिए एस्पिरिन का इंटेक जरूर हिस्ट्री पूछते हैं। सो इज दिस स्लाइड क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम Yes, ma'am. नहीं है फातिमा, मिनाहिल? नो मैम। हम सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स यूज करेंगे? नो। नो। हाँ, मतलब लाइक कर भी सकते हैं लेकिन हमें देखना पड़ेगा, पेशेंट सिलेक्शन इज सिचुएशन डिपेंड करता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। Likewise, lipoxygenase inhibitors and leukotriene receptor antagonists are useful in the treatment of asthma. Again, we'll refer back to this. अब ये देखो, जो leukotrienes जो थी, वो क्या कर रही हैं bronchospasm? तो leukotriene receptor agonist या lipoxygenase inhibitor? Lipoxygenase inhibitor वो एंजाइम को करेंगे और जो leukotriene receptor antagonist है वो ये कि अगर leukotrienes बंद भी गई हैं तो उन्होंने जिस रिसेप्टर को जाके लगना है उसको इनहिबिट कर, उसको ऑक्यूपाई कर दिया ताकि ल्यूकोट्राइन्स असर ही नहीं कर सके। वो एस्मा में ब्रोंकोस्पैज्म करती है ना ल्यूकोट्राइन्स, तो हमें एस्मा में ये दोनों चीजें चाहिए, लिपोक्सिनेज इनहिबिटर्स एंड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। Corticosteroids are broad spectrum anti-inflammatory agents that reduce the transcription of genes encoding many proteins involved in inflammation, including COX-2, phospholipase A2, a pro-inflammatory cytokine like interleukin-1 and human necrosis factor, and inducible nitric oxide species. ठीक है, corticosteroids का रोल जो है बहुत। अब अगेन मैं चूंकि हेमेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आपको ब्लड से रिलेटेड बातें बताती जाऊंगी कि आप सोचो हमने अगर किसी पेशेंट को ब्लड लगाया और उसको एक एलर्जिक सा रिएक्शन, अक्सर आप देखेंगे पेशेंट जो है ना उनको इचिंग शुरू हो जाती है, उनको छोटे छोटे जो है ना रैश सा पड़ना शुरू आता है विद ट्रांसफ्यूजन, जैसे जैसे ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, तो दैट इज एन एलर्जिक रिएक्शन। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम एंटीहिस्टामिन दे रहे होते हैं क्योंकि एलर्जी में हिस्टामिन इंपॉर्टेंट थी ना, मास्ट सेल से हिस्टामिन दे रहे होते Yes, हैं और हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे होते हैं बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। तो फिर वो हमारा पेशेंट जो है वो ब्लड तो नहीं लगवा सकेगा ना, तो हम स्टीरॉइड दे रहे होते हैं, एंटी हिस्टामिन दे रहे होते हैं, एविल का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, इस तरह जब आप चीजों को रिलेट कर लेंगे तो होपफुली यू विल नेवर फॉरगेट। ठीक है, सो दिस is the source of my presentation. I hope you have understood it. मैम एक हाँ जी क्वेश्चन है फैजान, आप बताओ बेटा क्या कह रहे हो? मैम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर जो NSAIDs हैं वो कितने को इफेक्टिव होते हैं? कितने अफेक्टिव होते हैं?
जी बहुत इफेक्टिव होते हैं बेटे, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। देखो मेरी बात सुनो। मैम, हाँ, क्या हुआ? स्टीरॉइड्स से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? देखो बेटे, अगेन ये भी वही बात होती है, इनिशियली तो आप स्टार्ट इन्फ्लेमेटरी से करते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी से। स्टीरॉइड्स अगेन आर नॉट वेरी गुड चॉइस, स्टीरॉइड्स आर नॉट वेरी गुड चॉइस। मैं हेमेटोलॉजिस्ट, मैं बहुत पेशेंट में स्टीरॉइड दे रही थी, लेकिन उनके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि पेशेंट्स आके ना लिटरली वो बस उनका बुरा, और कई पेशेंट तो स्ट्रेट अवे इनका, जैसे हमारी हेमेटोलॉजी में कुछ केसेस हैं, ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, जिसमें ऑटो इम्यून प्रोसेस, दिस इज ऑटो इम्यून प्रोसेस के एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली सेल्फ एंटीजेंस, तो हम उसमें स्टीरॉइड्स देते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो क्रॉनिक प्रोसेस है, वो चलती जाती है, जो हम लंबे टाइम के लिए स्टीरॉइड नहीं दे सकते। उनका फिर यही होता है कि स्टीरॉइड देने के साथ साथ हमें जरूर कोई गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव चीज देनी पड़ती, क्योंकि वो भी यही करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव थी COX-1 की वजह से, वो जब नहीं बन रही, हमारे पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस और ये सारी चीजें होती है, प्लस उनके स्टीरॉइड्स के और भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब किसी को आर्थराइटिस होता है, तो सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखें, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इन्फ्लेमेशन, एक तो आपको पेन इन जॉइंट्स और फंक्शनल लीजर और ये सारा कुछ कर रही है। आप खुद सोचो ना कि अगर किसी का नी जॉइंट में आर्थराइटिस, वो अफेक्ट, वो स्वोलन है, वो रेड है, वो पेनफुल है, वहाँ पे स्वोलन है, उस वाली की मैंने आपको बता दी, रेड है, टेंडर है लगाने में, उसको यूज नहीं करेगा पेशेंट, और हम नहीं चाहेंगे कि वो उसको वो स्टिफनेस ही डेवलप हो जाए। और अभी आप लोग, अभी तो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ी है ना, जब आप लोग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके साथ में हीलिंग ऑफ फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो जब एक चीज क्रॉनिक चल रही होती है, तो मतलब आप चाहेंगे कि आपके जॉइंट्स परमानेंटली जो है वो डी शेप हो जाए, उनमें फाइब्रोसिस हो जाए और वो लिमिटेड उसकी मूवमेंट हो जाए, ये हम कभी भी नहीं चाहेंगे। तो वी वांट टू रिड्यूस दैट इन्फ्लेमेशन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है ना? तो हम उनको दे रहे होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। किसने हाथ मैम, फैजान ने? मैम, पर जो आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एनसेड्स अच्छी चॉइस होती है, लेकिन कई ज्यादातर लोगों को आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आराम नहीं आता है एनसेड से, और जब आप जाते हो ये हॉस्पिटल, तो दे सेड के स्टीरॉइड इंजेक्शन लगा दो, सिंपल। तो मैम ये फिर क्या अच्छा, उसमें देखो, अब अगेन देखो, मैं चूंकि रियूमेटोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक्स से भी नहीं हूँ, तो सबसे ज्यादा अच्छा जवाब तो वही दे, बट व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगेन यहाँ पे पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टीरॉइड्स की बात की है, कई पेशेंट्स को हम स्टीरॉइड्स देते थे, दे डिड रिस्पॉन्ड, लेकिन कुछ पेशेंट्स ने वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, इतनी इतनी डोज, फिर हमें उनको कोई और मेडिसिन डालनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप देखें तो आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस में भी स्टार्ट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ, इफ अगर वो नहीं होते तो हम सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डिफरेंट चीजें उनको दे रहे होते हैं, ठीक है ना? हम उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी और चीजें दे रहे होते हैं, मतलब सिर्फ एनसेड्स नहीं, बल्कि और चीजें हमें डालनी पड़ती है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करनी पड़ती है, और मकसद हमारा एक ही होता है, वी वांट टू रिड्यूस दैट, वी वांट टू रिड्यूस दैट इन्फ्लेमेशन। जो हमारे पेशेंट को ना सिर्फ पेन हो रहा है, उसकी मूवमेंट लिमिट हो रही है, बल्कि इन द लॉन्ग रन वो जाके फाइब्रोसिस भी करा, ठीक है ना? आप लोगों ने अभी थर्ड ईयर में वार्ड में तो नहीं जाना शुरू किया, आप लोगों ने देखा होगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स की जो डिफॉर्मिटीज हाथों की हो जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड दिस एंड दैट, वो क्यों होती है? A chronic inflammatory process leads to fibrosis and stiffness of joints. आज आपको मैं यही कहूँगी, आप नेट खोलें और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जॉइंट डिफॉर्मिटीज, उनको जरा आप देखें, और फिर आपको अंदाजा होगा कि मतलब वी आर इन अ फिक्स, जब हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, वी आर इन अ फिक्स कि हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देना चाहते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी के साइड इफेक्ट से भी बचाना चाहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, नो डाउट, नो डाउट। आपने जरूर देखना है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी और जो हाथों में जो डिफॉर्मिटीज हो रही होती है, वो किस वजह से हो रही है, ठीक है ना? सो दिस वाज समथिंग अबाउट द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये अपलोड हो जाएगी मेरी प्रेजेंटेशन इन योर LMS, और आप इसको देख लें, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो यू पीपल कैन frankly ask, I'll be more than happy to answer it. मैम हमारे टेस्ट का कुछ डिसाइड हुआ? आपके टेस्ट का मैंने बताया था, डॉक्टर सायरा से तो बात नहीं हुई, लेकिन और आपके सीनियर से बात हुई थी, तो यही बात हुई थी कि आपने कहा था गूगल फॉर्म्स पे आपका टेस्ट हुआ फ्रेंसिक का, एंड दैट वाज ओके। तो वो मैंने उनको बताया था, तो वो कहते कि हम अरेंज करें। मेरा ख्याल है डॉक्टर सायरा से भी मेरी बात हुई है, तो कहती यस वी आर अरेंज, ठीक है? जी, थैंक यू। अभी तक समझ आ रही है इन्फ्लेमेशन की? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
बस इसको साथ साथ जो है ना आप बुक से भी देखते जाओ, ताकि उसके बाद जब इसका टेस्ट हो या कुछ हो। और इसको मैं बताऊं, जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि आप सिर्फ उसको टेस्ट के लिए पढ़ो। अब मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी, ये पेशेंट्स के साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो वी हैव टू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ इन्फ्लेमेशन, इट्स इवेंट्स एंड द मीडिएटर्स। और फिर हम ये कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हम यूज कर रहे होते हैं फार्मा में, आप पढ़ेंगे तो फिर आपको जब आप उसको इससे रिलेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत सॉलिड किस्म की आपकी लर्निंग मिलेगी, ठीक है जी। So thank you very much. Tomorrow we'll inshallah discuss the cytokines and the products of complement activation, and with that we'll end our acute inflammation. Thank you very much. Allah. अल्लाह हाफिज़। मैंने sign कर दिया।